many of you agree on that? It wouldn't have taken more than 30 to 45 minutes. केमिकल बॉन्डिंग की कोई भी एक्सरसाइज उससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है? And that's why you should use this time to complete chapter 1 and chapter 2. Practice more problem, ठीक है? मैंने असाइनमेंट, ठीक है, गूगल क्लासरूम में एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स डाल दिए हैं. चैप्टर 2 के ऑलरेडी डाले हुए थे, नोट्स भी था उसमें, के बाद उसका एक्सरसाइज भी था, ठीक है? चलो, so in this topic we studied about Lewis dot structure. We studied that yesterday again. Okay, then we studied about formal charges, right? Then we studied about ionic compounds, how ionic compounds are formed, right? The charges. Then lattice energy. So lattice energy is nothing but lattice enthalpy. It is the energy required, right? First, it is energy required to break the lattice or energy released when lattice is formed. Okay, you have to remember that both definition is right. Okay, then resonance. What is resonance? What is resonating structure? Resonance hybrid. Okay, right? We have already studied these things. Okay, no, you cannot ask in WhatsApp. I never ever reply on WhatsApp. ठीक है? If you have doubt, ask in the group. ठीक है? I'll create one separate chemistry group. जिसके इसके डाउट्स हैं उसमें डाल दो, ठीक है? मैं क्लास में ही समझाऊंगा. And if it's something which I've already taught in the class, please watch the video. Okay, you have to understand that syllabus of 11th and 12th is vast. I can't keep teaching one thing again and again. I usually teach one topic 2 or 3 times. Okay, right? But 40 students हैं. अगर मैं ऐसे notes के doubts क्लास में बताते रहूंगा तो मुझे 40 बार बताना पड़ेगा. So it will harm other students, right? What I would suggest, if it's something which I have already taught, please watch the video. ठीक है? पूरा वीडियो किया हुआ है, मैं उससे अलग नहीं बताऊंगा, सेम लैंग्वेज यूज करूंगा, सेम चीज बताऊंगा, राइट? तो इट्स बेटर वॉच द वीडियो. अगर क्वेश्चंस में डाउट है, सो टुडे आई विल क्रिएट अ सेपरेट डाउट सॉल्विंग ग्रुप. हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट सॉल्व करके बता दे, इट्स बेटर ना, राइट? So you should try to collaborate with each other. Okay, से मान लो आर्यन का डाउट्स हुआ तो अभिराम बता दिया, अभिराम का डाउट्स है तो आर्यन बता दिया, ठीक है? That will be much better, right? Instead of sending it to me. Okay, because you have to understand कि WhatsApp पे मैं solve नहीं करता because it's time take. It's take lots of time. Okay, बहुत ज़्यादा time waste होता है, ठीक है? Better है क्लास में 2 मिनट लगता है, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है? सो आई विल क्रिएट वन व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है? सिर्फ केमिस्ट्री का, जैसे मैथ्स के लिए है. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूज दैट ग्रुप टू आस्क डाउट्स फ्रॉम ईच अदर. हो सकता है कि तुम्हारा डाउट सिद्धार्थ बता दे, या कभी सौम्य बता दे, या कहीं स्नेहा बता दे, राइट? या अभिराम बता दे, कोई बता देगा. हेल्प करो एक दूसरे को, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है? और डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? ओके, सो यस, प्री रीडिंग सबका हो गया होगा. प्री रीडिंग इन क्लास एक्सरसाइज. किसी को डाउट है प्री रीडिंग में? किसी को डाउट्स है प्री रीडिंग में? बताओ जल्दी से. नो? ठीक है, वेरी गुड. अब जिसने नहीं किया एक्सरसाइज उसको तो दिक्कत होगा ना, ऑब्वियसली उसको दिक्कत होगा, जिसने एक्सरसाइज नहीं किया है, राइट? Okay, chalo. In class exercise 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sorry, in class exercise 1, 2, 3. Any doubt in question number 1, 2, 3? Third question. Okay. So see, the question was, which of the following does not contain coordinate bond? So coordinate bond condition क्या है? Simple पूछेंगे. मेरे पास एक A है, A can be molecule or an atom, और B है. Condition क्या होना चाहिए? B के पास lone pair होना चाहिए, A के पास वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए. चाहे वो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हो, राइट?
या पॉजिटिव चार्ज, which again means vacant atomic orbital. Now BH4 minus देखते हैं, तो BH4 minus is actually BH3 and H minus, ठीक है. NH4 plus is actually NH3 and H plus. CO3 2 minus, CO3 2 minus का स्ट्रक्चर तो हमें ऑलरेडी पता है, which is C double bond O, O minus, O minus. H3O plus is H O H H plus, H3 plus ये होता है, ठीक है. Now tell me, Karishma, tell me. Question is does not contain. Does not contain. Okay, CO3 2 minus. हाँ ठीक है. Tell me which of them will not contain coordinate bond. Answer, Pranjal, your answer is wrong. ठीक है, बताओ क्या आंसर है. अरे it's clearly visible, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया ऑलरेडी. Yes, it's C only ना. H2O की बात करते हैं तो इसके पास लोन पेयर है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया. NH3 और H प्लस, तो NH3 में N के पास लोन पेयर है और H के पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, राइट. BH4 माइनस, सो BH3, मैंने ऑलरेडी बताया था लास्ट क्लास में, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसके पास वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तो H माइनस 2 इलेक्ट्रॉन है, H माइनस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया. गॉट इट, राइट. सो ऑब्वियसली A, B और D तीनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, C नहीं बनाता है, ठीक है. गॉट इट, सबको समझ में आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट. चल मी, हाँ चलो, सबको समझ में आया. यस, ओके, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट 4 to 6. 4 to 6 बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 to 6. Any doubts? 4 to 6. जल्दी मैसेज. Any doubt? नहीं. 4 इजी है. 5th लेविस डॉट स्ट्रक्चर कल बता दिया था. 6th अगेन लेविस डॉट स्ट्रक्चर कल बता दिया था. तीनों का स्ट्रक्चर कल बता दिया था, ठीक है. करिश्मा, लास्ट क्लास का वीडियो देख लो, तीनों के तीनों का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, BF3 का भी, NO का भी और PCl5 का भी. PCl5 was example of expansion of octet, NO was example of odd electron bond, BF3 was example of contraction of octet. तीनों का स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में बताया हुआ है. प्लीज वॉच वीडियो आफ्टर द क्लास, ओके, राइट. Draw all possible chemical structure, right, of resonance hybrid of isocyanate ion and nitrate ion. Pranjal, देखो, NO3 minus. First of all, you have to draw the structure. It is this N double bond O, O minus. Now this is coordinate bond. So coordinate bond can be represented as O plus minus. Okay, so this is the structure of NO3 minus. ठीक है, this is the structure of NO3 minus. This is same as CO3 2 minus, है ना. तो याद है CO3 2 minus का कैसा हुआ था. पहले ये बॉन्ड टूटेगा, राइट, पॉजिटिव यहाँ, निगेटिव यहाँ, ये डबल बॉन्ड, राइट. फिर ये डबल बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव यहाँ, निगेटिव यहाँ, और ये निगेटिव पॉजिटिव के ये डबल बॉन्ड, right, which means double bond can be on this position, this position, this position, right. सेम काम करना है यहाँ पे, NO3 माइनस में सेम काम करना है, ठीक है. now CNO माइनस, so it's this C. now अब देखोगे CNO माइनस कैसे हो गया. CN तो
ऐसे हो जाता है ना। अब O माइनस कहाँ है? सो ध्यान दो, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इसके साथ C के साथ, और ये O माइनस होता है। पर ऑब्वियसली जब भी तुम रेजोनेंस करोगे ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस रिप्रेजेंटेशन से शो करना, ठीक है, जो दे रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज और जिस पे दे रहा है वो नेगेटिव चार्ज। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस O माइनस or minus. Now this plus is not vacant atomic orbital, right? मैंने ऑलरेडी समझाया ना, जब O 3 बॉन्ड फॉर्म करे तब प्लस आता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, right? Doesn't mean that O is having vacant atomic orbital. In the same way, if nitrogen form 4 bond, then plus charge आएगा, because it means इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ओके, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट? ये वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, राइट? सो फिर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड, यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, ओके, ठीक है। सो आई गेस सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ammonium chloride formed by the combination of ammonium and HCl, special kind of molecule, yes, ठीक है ना, राइट? देखो NH4Cl, तुमको उतना दिमाग नहीं लगाना है, तुमको सिंपली NH4Cl का स्ट्रक्चर देखना है। सो इट इज NH4 प्लस Cl माइनस, ये हो गया आयनिक, ये हो गया आयनिक। फिर NH4 प्लस का स्ट्रक्चर भी देखा है, NH3 और H प्लस, तो N, वेट, इसको मैं इस साइड मार देता हूँ, ये H प्लस, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, और ये N और 3H कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है, सो ऑब्वियसली आयनिक, कोऑर्डिनेट और NH H H is your covalent, ठीक है। So it contain all 3 type of bonds. Got it everyone? Yes, सबको समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन 9, so क्वेश्चन 9, draw the Lewis structure of N2O, ठीक है। So N2O, N, अब ध्यान दो, N2O को क्या होगा, N N, अब O, राइट? सो डबल बॉन्ड O। अब देखो इसमें थोड़ा दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O, ठीक है, और N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O। गॉट इट, राइट? नहीं तो एक और स्ट्रक्चर हो सकता है N डबल बॉन्ड N, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दोगे, N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ठीक है। सो ये और ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है ना, ठीक है, रेजोनेंस हो सकता था, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, गॉट इट, राइट? समझ में आ गया इम्बा? नॉर्मली ये स्ट्रक्चर ज्यादा पॉसिबल है, ठीक है, बिकॉज N2 एग्जिस्ट, देन O पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ठीक है, और दिस स्ट्रक्चर, राइट? यस, सो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में तुमसे क्या पूछा, फर्स्ट पार्ट में तुमसे पूछा है कि किसके बीच में स्ट्रक्चर रहेगा, है ना? सो अगेन इट कैन हैव मल्टीपल स्ट्रक्चर, ठीक है, इट कैन हैव मल्टीपल स्ट्रक्चर, ठीक है।
सी एज आई हैव टोल्ड यू, ये ज्यादा एक्सेप्टेड होता है, दिस वन, राइट, n triple one n then this, okay, right, और दिस कैन ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है, और एक और स्ट्रक्चर हो सकता है। थिंग इज ना कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। सॉल्यूशन तो मैंने भेजा नहीं है, तो कहाँ से सॉल्यूशन देख लिए तुम इम्बा? See, you just have to figure that octet should be complete, okay, right? If octet is complete, then it's fine. So 3 structure of n2 is valid, okay, 3 structure of n2 is valid. समझ में आ रही है चीज? मैंने सिर्फ 2 ही बनाया है, there is third structure also जो भी valid हो सकता है, ठीक है, बट जनरली ये दोनों स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है, गॉट इट? नेक्स्ट, ओके, आंसर, आंसर दोनों में से कोई एक होगा ना, आंसर तो वही होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9th के बाद ठीक तो है, ये वाला स्ट्रक्चर तो दिया है, यही स्ट्रक्चर दिया है। अरे इंसान, n ट्रिपल बॉन्ड n सिंगल बॉन्ड o, काउंट करो लोन पेयर कितना दिया है, राइट, 2 2 4 2 6, तो ये एक्स्ट्रा लोन पेयर इज योर नेगेटिव चार्ज ना, ये जब लोन पेयर रिप्रेजेंट कर दिया एक्स्ट्रा तो नेगेटिव चार्ज लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर दिया है। और यहाँ पे सेकेंड वाले में एक भी लोन पेयर नहीं है, राइट, क्योंकि 4 बॉन्ड बन गया है, n के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते थे, एक दे दिया इसको, इसलिए यहाँ पे एक लोन पेयर है। और यहाँ पे राइट ऐसे बनाया है, मतलब 3 2 सॉरी 3 into 2 6 plus 2 8, so इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8, ये स्ट्रक्चर बनाया है। दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, इम्बा गॉट इट, सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, सेम स्ट्रक्चर है, नेगेटिव पॉजिटिव ना देकर तुमको इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज का मतलब सिर्फ ये होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सो लोन पेयर इज योर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, गॉट इट, लोन पेयर इज योर नेगेटिव चार्ज, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, होमवर्क, होमवर्क 1 to 5 बताओ, कोई डाउट? 1 to 5, 4.5, 4 and 5, ओके, सी सॉल्युबिलिटी मैंने बताया था ना, राइट, कि पोलर मॉलिक्यूल विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, ओके, तो लाइक डिसॉल्व लाइक ऐसे करना, लाइक डिसॉल्व लाइक, ओके, मींस polar compound will dissolve polar compound, like polar solvent will dissolve polar compounds, non-polar solvent will dissolve non-polar solvents, ठीक है, preferably, ठीक है, right, so non-polar soluble, ठीक है, right, will dissolve non-polar solvents, any issues? Next, question number 5,
ओके सो क्वेश्चन नंबर 5, आई टोल्ड यू राइट कि जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा राइट उसका आयनिक परसेंटेज ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन का 4 है और हाइड्रोजन का 2.2 है, तो डेल्टा ई कितना होगा बताओ? 4 माइनस 2.2 कितना हो गया? 1.8। फिर सेकेंड ये HF का, फिर HCl का कितना होगा? HCl निकाल लोगे which is 3 minus 2.2 है ना, फिर HBr और HI। so obviously आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाला किसका होगा? HF का, है ना? got it? समझ में आया सबको? क्लियर है ये चीज? ठीक है, ओके सो ये हो गया। नेक्स्ट लेवल 2, लेवल 2 बताओ। 6 to 10, 6 to 10, any doubt in question number 6 to 10? सिक्स का सेकेंड एंड थर्ड, सो सी देखो BrCN it's basically your ionic compound, okay? so BrCN में थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप तुमको लगेगा, ठीक है? now sorry not ionic compound, okay, just covalent Br single bond C double bond N triple bond N, so it's Br single bond C triple bond N, as simple as that, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कोवेलेंसी किसकी होगी? तुम बोलोगे Br की हो सकती है, बट C क्या है? C की शेयरिंग टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है? राइट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BrCN, और CN हमेशा एक साथ रहता है, ठीक है? CN जब भी होगा ऐसे ही बनाओगे, देन N2F2, so it's NF this simple, ठीक है? got it right? okay, level 1 question 2, simple है ना? right, all ionic compounds using the atom P Br Mg, so Mg Br2 ionic compound, right? then covalent compound PBr3 PBr5, right? ये सब क्या हो गया? covalent compound, that's it, ठीक है? नेक्स्ट 6 के बाद बताओ, हो गया? 7 to 10, 7 to 10, 10, ओके, सो 10 से पहले किसी कुछ नहीं है? 10 से पहले सी NOCl, NOCl क्या बनाना है? स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है? फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक है? देखते हैं। सो NOCl क्या होगा? N बीच में होगा, फिर अब NOCl है तो ये डबल बॉन्ड O और Cl, बट Cl के पास लोन पेयर है, ठीक है? Cl के पास लोन पेयर है, एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है ना? नहीं तो अब ये लोन पेयर बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, तो ये लोन पेयर इधर अटैक करेगा, तो वी विल गेट C प्लस डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O माइनस, तो ये पहला स्ट्रक्चर और ये दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है? पीछे आंसर की में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ना देकर सिर्फ डॉट रिप्रेजेंट किया है, तो तुम डॉट को काउंट कर लो। यहाँ पे O माइनस का मतलब है एक्स्ट्रा लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर पहले था, ये एक्स्ट्रा लोन पेयर, ठीक है? राइट, तो हो गया ना 6 इलेक्ट्रॉन, जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे सिर्फ
4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद फिर तुमको फॉर्मल चार्ज काउंट करना है, तो वो तो फॉर्मूला आके काउंट कर लो। ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे ऑलरेडी पता चल रहा है ना, जैसे पहले वाले में Cl पे चार्ज क्या है, पहले वाले में, ठीक है, Cl पे चार्ज 0 है, N पे चार्ज क्या है, कुछ नहीं है तो 0, O पे चार्ज 0, मतलब जो ये स्ट्रक्चर था Cl सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, सब पे चार्ज 0, और यहाँ पे साथ बचा +1 कार्बन पे, N पे 0, O पे -1, तो ये तुमको ऐसे ही पता चल रहा है, फॉर्मूला आगे भी यही होगा। ठीक है, गॉट इट, चुलिका गॉट इट। 10th साम्या एवरीवन, ठीक है, 10th हो गया, समझ में आ सबको 10th, राइट? ठीक है, 9th लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सी। तुम देखो कि जो एस है वो किस ग्रुप में है, किस ग्रुप में है, एज सिंपल एज दैट, है ना। एस किस ग्रुप में आएगा, बताओ। और अरे लेविस फॉर्मूला फॉर आर्सेनेट आयन, ठीक है, राइट, इजी है ना। एस तुमको लेविस बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बॉन्ड जैसा मान लो, राइट, है ना। सो O4 3-, सो इट्स डबल बॉन्ड O माइनस, ये नाइट्रोजन फैमिली का है ना, O माइनस O माइनस, 5 बॉन्ड रहेंगे, तो ये हो गया। तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, राइट, बिकॉज वैकेंट डी एटॉमिक ऑर्बिटल है। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ AsO4 3-। फॉर्मूला ऑफ लेड, सो इसका वैलेंसी कितना है 3, और पीबी का वैलेंसी कितना पता है 2, तो पीबी का वैलेंसी 2 और AsO4 का वैलेंसी 3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो फॉर्मूला इज Pb3 AsO4 का होल ट्वाइस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, गॉट इट, राइट। ठीक है, नेक्स्ट 8, देखो HiO4 स्ट्रक्चर वन है H, अब देखो बीच में I रहेगा, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इफ वी हैव O and H टुगेदर, सो दिस H विल स्टे विथ O। ठीक है, तो एक हो गया, एक वो खत्म, नेक्स्ट कितने वो बचे, 3, because I can have maximum of 7 bonds। ठीक है, तो ये भी हो गया, गॉट इट। 7th का सेकेंड तो अभी बताया मैंने, C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव चार्ज ऑन C। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज C पे होता है। ठीक है, और ClF2 प्लस, सो ClF प्लस चार्ज Cl पे होता है। ठीक है, अब कैसे पता प्लस चार्ज Cl पे होगा, ऑब्वियसली F पे तो होगा नहीं, बिकॉज उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना है, राइट। और सेकेंड, 2 बॉन्ड बन रहा है, तो अगर Cl पे चार्ज नहीं आएगा तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनने चाहिए, बिकॉज Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर रह सकता है ना, तो लोन पेयर या तो एक रहेगा तो 5 बॉन्ड बनेगा, अगर लोन पेयर 2 रहेगा तो 3 बॉन्ड बनेगा, बिकॉज 4 + 3 7, लोन पेयर 3 रहेगा तो 1 बॉन्ड बनेगा, बट 2 बॉन्ड बना है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया होगा। ठीक है, गॉट इट, ओके। सो मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया, सबको समझ में आया अच्छे से, हाथ उठा लो, सबको समझ में आया फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से, किसी को दिक्कत है फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्लियर हो गया। फोर्थ बॉन्ड तो हुआ ना नेगेटिव चार्ज, राइट, बॉन्ड क्यों बनता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जब इसमें C- है तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन तो ये नेगेटिव चार्ज है ही, गॉट इट, समझ में आ रहा है सुहास। जैसे O 2 बॉन्ड में आता है, बट एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, राइट। ठीक है,
ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट 4.2 सी ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है, नॉट रेयरेस्ट केस, सिंपल केस में ही केसीएन ले लो, राइट, बट इट्स नॉट जस्ट कार्बन, इट्स सीएन मॉलिक्यूल, इट विल बी के प्लस एन सीएन माइनस, ठीक है, राइट। सी सिर्फ सी नहीं बनाएगा, कंपाउंड ऑफ कार्बन, यस इट कैन, ठीक है, many compounds are there na, CO3 2 minus, right, so these are the compounds of carbon which form covalent bond, sorry, ionic bond, but not carbon itself, okay, there are some cases, right, but वो भी molecule है, जैसे calcium carbide CaC2, okay, अकेला कार्बन नहीं है, it's C double bond C minus minus, ठीक है, calcium carbide, ठीक है, चलो नाउ 4.2 में ये दो टॉपिक रह गया था, ठीक है, सो विल कंप्लीट दिस टू टॉपिक, राइट, ठीक है, ओके, वेरी गुड। सो आज 4.1 करते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है, हाफ एन आवर कुछ पढ़ाना है, ठीक है, ओके, ठीक है, सो 4.2 नेक्स्ट क्लास में 4.1 हो गया।